Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is History of India, the Aryans to Mughals. And what we are going to read in this chapter about the Aryan civilization, the Mauryan dynasty, the great Harshvardhan, Gupta dynasty, Delhi Sultanate, the Mughals, kingdoms in the south and Mughals after Akbar. One Sunday, Riya and Udit along with their parents went on a visit to see the history museum. Okay, Riya and Udit अपने parents के साथ एक दिन history museum देखने जाते हैं. It was a wonderful visit. The twins were amazed to see so many things from the past. Father told them how even though no written records of the life of the people of ancient times were found, learned people called archaeologists dig up to ground to find articles from the past and study them to know more about history. तो उसके फादर बताते हैं कि पहले कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे क्योंकि लोगों को लिखना नहीं आता था. तो उस टाइम को कैसे हम उस पास्ट को स्टडी करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पर वो लोग रहते थे, जहाँ वो सिविलाइजेशन थी, उसको डिग करते हैं ग्राउंड को और पास्ट के जो आर्टिकल थे जो अंडरग्राउंड मिलते हैं उनको स्टडी करते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. रिमेंबर हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डग अप द sites at Harappa and Mohenjo-daro to tell us about the great Indus Valley civilization, said mother. These articles give us glimpse of the life of the people of those times, how they lived, what they ate and how they hunted. Mother कहती हैं कि तुम्हें याद होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये दो सिटी क्या की थी, एक्सक्वेट की थी. ठीक है, कैसे वहाँ पर आर्टिकल जो अंडरग्राउंड मिले उनको स्टडी किया, कैसे लोगों के बारे में बताया कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या शिकार करते थे. So how was our country after the decline of the Indus Valley civilization? Father told us about some of the famous kings and emperors of ancient times. So Indus Valley civilization यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो खत्म हो जाने के बाद कैसे आगे कंट्री में कैसे प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ आगे, कौन से एम्परर, कौन से राजा महाराजा, कौन से किंगडम ने रूल किया. After the decline of the Indus Valley civilization, many kings and emperors ruled India. But remember, history is not just about the lives of kings. It is all about the people who lived in the land, how their lives were, what progress they made, and how their lives changed with the times. Father told them. Father क्या कहते हैं, लेकिन history सिर्फ राजा महाराजाओं की ही लाइफ के बारे में नहीं है. हिस्ट्री में वो कॉमन पीपल भी आते हैं जो उस टाइम पर रहते थे, वो क्या काम करते थे, वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या प्रोग्रेस की, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई. Now the first we will talk about is the Aryan civilization. Okay, entry of Aryans into India. कैसे एंट्री हुई थी इंडिया में आर्यंस की. Okay, after the collapse of the Indus Valley civilization around 1500 BC, the Aryans, a tribe from Central Asia, came into India through Afghanistan. अफगानिस्तान के थ्रू कुछ लोग ट्राइबल पीपल इंडिया में आते हैं. At first they were nomads wandering with their cattle from one place to another. पहले वो लोग क्या थे, नोमैड्स थे. नोमैड्स आप कई बार ये वर्ड पढ़ चुके हो. नोमैड मतलब जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, जो इधर उधर मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो आर्यंस क्या थे, पहले नोमैड्स थे, वो इधर उधर अपने कैटल के साथ मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर. दे लेटर बिगेन टू सबड्यू द नेटिव पीपल. बाय 1000 BC दे लर्न टू यूज आयरन. और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बस गए और 1000 BC में उन्होंने आयरन की डिस्कवरी की और आयरन को यूज़ करना शुरू किया. With the passage of time, the Aryans settled down and became farmers. Slowly, these tribes became kingdoms and the Aryans became the priests, rulers and warriors. Free peasants are merchants and the people that they subdued became the slaves, laborers and artisans. अब कुछ टाइम के बाद जब टाइम बीतता गया, आर्यन जो है एक जगह पर रहना शुरू कर दिया. जो वहाँ पर जिनको सबड्यू किया था, जिनको वहाँ से हटाया था, उनको क्या बना लिया उन्होंने, स्लेव, लेबरर और आर्टिशन बना लिया. ठीक है, और खुद वो लोग क्या बन गए, कुछ उनमें से प्रिस्ट बन गए, कुछ रूलर बन गए, कुछ वैरियर्स बन गए, कुछ पीजेंट और मर्चेंट्स के रूप में काम करने लगे. The Hindu religion also evolved at this time. The sacred literature called the Vedas were created.
और उस टाइम कौन सा रिलीजन स्टार्ट हुआ? हिंदू रिलीजन, ठीक है। और वेदास जो ग्रेट एपिक है, ग्रेट लिटरेचर है हमारा वेदा, वो भी इसी टाइम पर लिखा गया था। इन टाइम द आर्यंस लर्न टू ग्रो राइस बाय 600 BC राइस कल्टिवेशन वॉज फ्लोरिशिंग इन इंडिया। और उस टाइम पर किसकी खेती शुरू की थी आर्यंस ने? दे ग्रो राइस, ओके। And with the more settled and ordered society, trade and commerce started to flourish. People began to live in towns and writing was reinvented, and thus a highly civilized society emerged in India. Now next is Mauryan dynasty. In 322 BC, the first great empire, the Mauryan Empire, arose. Chandragupta Maurya became king of the state of Magdha. कौन king था first? Chandragupta Maurya, okay, became the king of the state of Magdha in North India with the help of the able advisor Kautilya, that was called Chanakya. कौन advisor था? Chandragupta Maurya का. And after Alexander the Great died, his empire was split between his generals. Seleucus took the eastern part and attempted to get back the Indian province and had at one time been ruled by Alexander. Alexander के मरने के बाद उसका जो एम्पायर है वो उसके जनरल्स में बट गया था, ठीक है। सेल्यूकस ने भी एक ईस्टर्न पार्ट ले लिया था और उसने अटेम्प्ट किया बाकी के इंडियन प्रोविंस को भी क्या करने के लिए? जीतने के लिए, जो किसी टाइम अलेक्जेंडर जिन पर रूल करता था। हाउएवर चंद्रगुप्त मौर्यज आर्मी स्टॉप्ड हिम, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में जब सेल्यूकस ने ऐसा किया तो चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी ने उसे स्टॉप किया। सेल्यूकस वॉज फोर्स टू गिव अप मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान टू चंद्रगुप्त, और सेल्यूकस को फोर्स होना पड़ा, सेल्यूकस से ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान, मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान को चंद्रगुप्त को देना पड़ा। आफ्टर चंद्रगुप्त हिज सन बिंदुसारा एक्सटेंडेड द एम्पायर टू साउथ इंडिया। चंद्रगुप्त द ग्रेट किंग थे, उनके बेटे बिंदुसारा उस टाइम नेक्स्ट एम्पायर बनते हैं और उन्होंने भी साउथ इंडिया में एक्सटेंड करने का अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, ठीक है। द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर वॉज अशोका 269 to 232, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर कौन रहा? अशोका, ठीक है। He conquered Kalinga, that is the modern day Odisha, but afterward he decided to give up warfare and converted to Buddhism. कलिंगा की वॉर के बाद, कलिंगा जिसको प्रेजेंट डे ओडिशा कहते हैं, उसको जीतने के बाद क्या किया? अशोका ने बिल्कुल वॉरफेयर को ख़त्म कर दिया, उसने गिव अप कर दिया और बुद्धिज़्म रिलीजन को अपना लिया। ही गोट द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट एनग्रेव्ड इन स्टोन पिलर्स और ऑन रॉक्स थ्रू आउट हिज किंगडम टू टीच द पीपल हाउ टू लिव, और हर जगह इंस्क्रिप्शन उसने बनवा रखे थे, स्टोन पिलर्स पर एनग्रेव करा रखे थे बुद्धिज़्म के जो प्रिंसिपल थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन को अपनाएं, ओके। एंड अशोकाज डेथ, आफ्टर अशोकाज डेथ द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन, लेकिन अशोका की डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा किंग नहीं आए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग नहीं आए। नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। A new empire was founded early in the 4th century AD by Chandragupta. After his death, his son Samundargupta conquered the whole of northern India and much of central India. India once again became prosperous and stable and did ट्रेड विद चाइना, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त नेक्स्ट रूलर बनता है, और उस टाइम जो नॉर्दर्न इंडिया था, सेंट्रल इंडिया था, काफ़ी प्रोस्पेरस था, क्योंकि ट्रेड उस टाइम चाइना के साथ बहुत अच्छा था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन फ्लोरिश्ड, लिटरेचर ऑल्सो ब्लॉसम्ड, एंड दिस वॉज द एज ऑफ द ग्रेट पोइट कालिदास। और इस टाइम ग्रेट किंग जो आपने सुना होगा कालिदास, वो इसी टाइम पीरियड के थे। द गुप्ता एम्पायर रीच्ड अ पीक अंडर चंद्रगुप्त II। उसके बाद न्यू रूलर चंद्रगुप्त II के अंडर गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड ब्रोक अप इन द अर्ली 6th century। हर्षवर्धन, गुप्ता डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट रूलर हर्षवर्धन। द ग्रेट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वॉज किंग हर्षवर्धन।
606 to 647. He began as a ruler of the kingdom of Thanesar in North India. कहाँ से उन्होंने रूल करना शुरू किया था? Kingdom of Thanesar in North India. He carved out an empire in northern India, and however in 630 when he attempted to conquer South India, he was severely defeated by King Pulkeshin. Despite this setback, Harsha remained a powerful ruler. During his reign, his biography called the Harshcharita was written. After his death, his kingdom broke up and India once again became a land of several kingdoms, frequently at war with each other. और हर्षवर्धन के बाद क्या हर्षवर्धन की बायोग्राफी एक हर्षचरिता बुक है, उसमें लिखी हुई है। और हर्षवर्धन के डेथ के बाद दोबारा से जो किंगडम है वो ब्रोकअप हो गया और बहुत सारे सेवरल किंगडम्स जो हैं वो एरोज हुए, एक दूसरे के साथ वॉर करने लगे कि कौन सा किंगडम पावरफुल है। नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत। In the absence of a strong central power, Afghan ruler Muhammad Ghori attacked and won Delhi and areas around it. अब उस टाइम क्या था, हर्षवर्धन के बाद कोई भी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, ठीक है। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट किंगडम थे वो आपस में फाइट कर रहे थे, कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी, तो उसका फ़ायदा उठाया एक अफगान रूलर जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसने क्या किया, अटैक किया दिल्ली पर एंड दिल्ली को जीत लिया और उसके दिल्ली के आसपास के एरिया जो हैं उनको कैप्चर कर लिया। ही लेफ्ट हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द एरियाज ऑन हिज बिहाफ एंड रिटर्न होम। और अफगानिस्तान जाने से पहले उसने अपने रूलर, एक उसका जनरल था, एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली में इंडिया में छोड़ दिया ताकि वो जीती हुई कॉन्क्यूर की हुई टेरिटरी को संभाल पाए। After Ghori's death, Qutbuddin Aibak declared himself king and founded the Delhi Sultanate. और उसके मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद को किंग बना देता है, किंग डिक्लेयर कर देता है और यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। डू यू नो रजिया सुल्ताना वॉज द only women ruler during the Delhi Sultanate and the Mughal period. सिर्फ एक ही लेडी रूलर रही है, ठीक है, during the Mughal and Delhi Sultanate period, that was Rajia Sultan. Fine. Now the Mughal Empire India was established by Babur. अब मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत में मुगल एम्पायर जो है वो किसने शुरू किया था? बाबर ने। The Mughal Empire had some great rulers such as Akbar, Shahjahan, Aurangzeb. Babur's grandson Akbar was one of the most famous ruler of India. He not only brought many new areas under his rule and built a huge empire, but also set up an excellent administrative system. Akbar the Great, जिसके बारे में आपने सबने सुना है, सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर था अकबर, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर उसने मेंटेन किया था, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उस टाइम का। वो एक रूलर ही नहीं था, उसे हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज भी थी और रिलीजन की, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था। ही हैड अ फेमस टीम ऑफ 9 वाइज कॉर्टियर्स, नवरत्न जिसको बोला जाता था, ठीक है, 9 बुद्धिमान लोगों की उसके पास उपस्थिति थी, ठीक है, उसके कोर्ट में, एंड जो उसको टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते थे। दिस इंक्लूडेड द क्लेवर बीरबल एंड द फेमस सिंगर तानसेन, जिन 9 में से कुछ फेमस हैं लाइक बीरबल एंड द तानसेन, ये आपने सुने होंगे दोनों के नाम। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज किंगडम्स इन द साउथ। उस टाइम नॉर्थ में क्या थी? दिल्ली सल्तनत। तो साउथ में क्या चल रहा था? 2 great kingdoms rose in South India or the Deccan. One was the Vijayanagar Empire and the other is Bahamani Kingdom. The most famous ruler of the Vijayanagar Empire was Krishna Deva Raja. ठीक है, he was a great ruler who brought about many developments as well as encouraged arts and architecture. जिसने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की, एक ग्रेट रूलर था और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट इज मुगल्स आफ्टर अकबर। मुगल्स में अकबर एक ग्रेट किंग था। अकबर के बाद क्या हुआ?
अकबर का जो सन था जहांगीर, ठीक है, वो नेक्स्ट किंग बनता है, नेक्स्ट रूलर बनता है। एंड अकबर सन जहांगीर फॉलोड अकबर टू द थ्रोन। जहांगीर सन शाहजहां built the famous Taj Mahal in Agra in memory of his wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is considered one of the 7 wonders of the world. ठीक है, पता ही होगा आपको, ताज महल जो है वो 7 wonders of the world में से एक माना जाता है। He also built the Jama Masjid in Delhi. It is the largest mosque in India. When Shah Jahan's son Aurangzeb became the emperor, he began to conquer many other kingdoms. जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब रूलर बनता है तो वो कोशिश करता है अदर किंगडम को कॉन्क्यूर करने की। दिस ब्रॉट हिम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास एंड देयर फेमस लीडर छत्रपति शिवाजी। और वहीं पर उसी ड्यूरेशन में उसकी फाइट होती है द ग्रेट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के साथ। आफ्टर औरंगजेब डेथ द एम्पायर स्लोली ग्रू वीक एंड वॉज फाइनली रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और उसकी जगह कौन आ जाते हैं? ब्रिटिशर्स। फाइन, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। History is not just about rulers and what they did, but also about common people and their lives. Next is, when the Indus Valley civilization declined, the Aryan civilization emerged and the new kingdoms were formed. Magdha emerged as one of the most powerful kingdoms. Ashoka and the Guptas were some great rulers of ancient India. The Delhi Sultanate began with the rule of Qutbuddin Aibak. Babur established Mughal rule over North India. The Mughal rulers such as Akbar and Shah Jahan were some of the greatest emperors. And the Vijayanagar Empire and Bahamani Kingdom were 2 great kingdoms in the south. So this is the chapter bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.